Good morning, dear students. A very warm welcome to Shiv Jyoti Educational Group. Today, we are going to start our sixth chapter, that is staffing. Before starting this chapter, I would like to request all the students to keep their books along with you so that you can mark your queries. So students, in this particular chapter, we are going to study the following contents, that is the concept of social responsibility, arguments in favor of social responsibility and arguments against social responsibility. In this particular chapter, students, the business ethics concepts and elements has been deleted, so we will not study this particular topic in our chapter. So students, let's talk about the social responsibility. If we talk about the social responsibility, it consists of two words, that is social and responsibility. देखिए होता क्या है, कोई भी बिजनेस है वो अगर रन कर रहा है तो जो भी रिसोर्सेज उसे मिल रही हैं वो कहाँ से मिल रही हैं, सोसाइटी से मिल रही हैं, तो उसका भी ऑब्लिगेशन बनती है कि वो सोसाइटी को कुछ ना कुछ रिटर्न में दे। तो उसी के बारे में चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स, दैट इज सोशल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. व्हाट अ बिजनेस शुड possess responsibility towards the society, that is towards consumers, towards government, towards shareholders. ठीक है, अगर मैं अपने प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करता हूँ, ठीक है, अगर कोई भी बिजनेस है वो रन कर रहा है सिर्फ अपने प्रॉफिट मोटिव के लिए, कोई भी लॉस अगर एनवायरनमेंट में हो रहा है, कोई भी लॉस अगर कंज्यूमर को हो रहा है, मींस मैं कंज्यूमर्स की क्वेरीज को सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहा हूँ, तो क्या होगा कि जो भी प्रॉब्लम्स एक बार मेरे पास आई और मैंने कंज्यूमर्स की वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करी, तो क्या हुआ, मैं शॉर्ट रन तक तो रन कर सकता हूँ, बट लॉन्ग रन में आते ही मेरे को क्या होगा, प्रॉब्लम आने लग जाएगी, क्योंकि मेरे पास उस प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए कंज्यूमर्स नहीं होंगे, मेरे पास जो सर्विसेज जो कॉस्ट में एक बार इनकर कर चुका हूँ उस कॉस्ट को मैं कवर अप नहीं कर पाऊंगा. So in social responsibility, I have some responsibility towards the society as a businessman, which I have to fulfill. Now, every business enterprise has to fulfill certain responsibility for its survival and growth in the society. As we talk about as a businessman, we must have some responsibility towards the society. We must provide the goods and services as required by the consumers. We should sort out or solve the problems of the consumers. Now, if we talk about the definition of social responsibility, a business is a part of society, so a business enterprise should do a business and earn money that fulfill the aspirations of the society. So students, if we talk about the demands of the consumers, the business has to run as per the needs of the consumers. बिजनेस को जो भी काम करना है पहले क्या करना पड़ेगा, कंज्यूमर्स की डिमांड पता करनी पड़ेगी और उनकी डिमांड्स को फुलफिल करते हुए अपने प्रॉफिट मोटिव को क्या करना है, पूरा करना. सो thus a social responsibility relates to a voluntary efforts on the part of businessmen to contribute to the social well-being. What means that is we have to work for the well-being of the society. हमें लोगों के वेलफेयर के बारे में भी क्या करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर कस्टमर हमारे प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड है, हमारी सर्विसेज से सेटिस्फाइड है, तो ही वो क्या करेगा, नेक्स्ट टाइम हमसे प्रोडक्ट परचेज करेगा. लेकिन अगर हमने सिर्फ प्रोडक्ट सेल करने के लिए एक बार कंज्यूमर को प्रोडक्ट दे दिया और उससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज आती हैं वो हमने सॉल्व नहीं करी, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, हमें एक टाइम तो कस्टमर मिल जाएगा, लेकिन दोबारा जो हमारा मोटिव है रिपीटेड सेल का, वो हम कभी भी फुलफिल नहीं कर पाएंगे. तो हमें जो भी काम करना है लोगों के वेलफेयर के साथ करना है, लोगों की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करते हुए करना है, और उसी के साथ साथ हमें हमारा जो मेन मोटिव है प्रॉफिट जनरेशन का, उसको भी फुलफिल करना. So there are some cases or some situations in the social responsibility. What are these? That is the relationship between social interest and business interest. That means we have to fulfill the needs of the society. हमें अपनी बिजनेस के प्रॉफिट मोटिव को भी साथ में रखना है और लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो प्रॉब्लम वो लोग फेस कर रहे हैं, उसको भी क्या करना है, पूरा करना है. Maintenance of the society. That means we must have consumers available with us.
हमें क्या करना है, सोसाइटी के सेंटिमेंट्स को ध्यान रखते हुए, सोसाइटी के सिचुएशन को ध्यान रखते हुए अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हमने एनवायरनमेंट को बहुत सारा हार्म कर दिया, हमने बहुत सारा पोल्यूशन कर दिया, बहुत सारी ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी जिससे क्या हो रहा है, ओवरऑल सराउंडिंग्स में एग्जिस्ट करना क्या हो रहा है, पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो हमें क्या करना है कि सोसाइटी को भी मेंटेन करते हुए चलना है। बेटर एनवायरनमेंट फॉर डूइंग द बिजनेस। इफ यू कंसर्न अबाउट द एनवायरनमेंट, देखिए दो सिचुएशन हमारे सामने होती है। पहली चीज तो जो एम्प्लॉयज हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, राइट, ऑल द एम्प्लॉयज विच आर वर्किंग, वी हैव टू गिव प्रॉपर सैनिटेशन। अगर प्रेजेंट सिनेरियो की बात किया जाए तो क्या है, अभी कोरोना फेज चल रहा है, हम लोग सब जानते ही हैं। तो अगर हम प्रॉपर सैनिटेशंस या प्रॉपर चीज़ों को माइंड करते हुए नहीं चलेंगे, प्रॉपर सिचुएशन क्रिएट करते हुए नहीं चलेंगे, तो क्या होगा, जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा बढ़ती जाएगी। और अगर एम्प्लॉयज़ को एक बेटर सराउंडिंग नहीं मिलेगा काम करने के लिए, तो क्या होगा, एब्सेंटिज्म, एम्प्लॉयज़ अच्छे से अपनी सर्विसेज नहीं दे पाएंगे और अल्टीमेटली बिजनेस हैज़ टू सफर। नाउ सोशल कल्चरल नॉर्म्स, what means, that means we have to keep in mind the social customs of the society, means we should give our product and services according to the custom, according to the religions of the society। ऐसा नहीं है किसी के सेंटिमेंट्स हार्म हो रहे हैं, हम लोग बिजनेस में ऐसी कोई एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, कोई भी ऐसा फंक्शनिंग कर रहे हैं जिससे लोगों के जो रिलीजन्स हैं या सेंटिमेंट्स है उस पर इफेक्ट पड़ रहा है, तो ऐसा कोई भी एक्टिविटी एक बिजनेस को परफॉर्म नहीं करनी चाहिए। ओके, नाउ जस्टिफिकेशन एंड एग्जिस्टेंस एंड ग्रोथ। नाउ व्हाट हैपन, देखिए बेटो स्टूडेंट्स, होता क्या है कि जब भी कोई बिजनेस हम लोग कर रहे हैं तो क्या करना है, हमें हमारे प्रेजेंट एग्जिस्टेंस के बारे में भी सोचना है और बिजनेस को कैसे डाइवर्सिफाई करना है वो भी हमें सोचना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो क्या है, कोई भी बिजनेस स्टार्ट होता है तो हमने पहले भी ये चीज़ पढ़ी है कि जब बिजनेस स्टार्ट हुआ तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बिजनेस इनिशियल स्टेज से प्रॉफिट अर्न करना स्टार्ट कर दे। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले अपना एग्जिस्टेंस, मींस हमें जो हमारे प्रेजेंट सिचुएशन है उसको कंट्रोल करके चलना है। ऐसा ना हो कि हमें स्टार्टिंग से बहुत ज़्यादा लॉस होना स्टार्ट हो जाए, और इफ सच सिचुएशंस अकर्स तो होगा क्या, वी हैव टू क्लोज डाउन अवर बिजनेस, हमें क्या करना पड़ेगा, बिजनेस बंद करना पड़ेगा। तो पहली चीज़ तो क्या कि हमें हमारे एग्जिस्टेंस के बारे में भी सोचना है, और दूसरी चीज़ क्या, हमें हमारे ग्रोथ, कैसे हम अपना बिजनेस डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, कैसे हम अपने बिजनेस को इंक्रीज कर सकते हैं, वो भी देखना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ द फर्म। नाउ व्हाट हैपन स्टूडेंट्स, अगर बात की जाए शॉर्ट रन की, तो मे बी अ बिजनेस मस्ट हैव अ प्रॉफिट मोटिव, हो सकता है वो प्रॉफिट के लिए काम कर रहा हो, लेकिन अगर लॉन्ग रन की बात की जाए तो हमें कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस अपनी सोसाइटी के लिए भी देना पड़ेगा। अब वो वॉलंटरी भी हो सकता है या फिर गवर्नमेंट के रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग भी हो सकता है। देखिए इस चीज़ के लिए गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बना रखी है जिसे हम बोलते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके लिए क्या किया गया कि अगर कोई भी कंपनी अगर एक सर्टेन लेवल पे प्रॉफिट अर्न करती है तो उसको अपनी प्रॉफिट का एवरेज 2%, मींस हम जो प्रॉफिट कैलकुलेट करने वाले हैं वो लास्ट 3 ईयर्स का एवरेज नेट प्रॉफिट हमें क्या लेना पड़ेगा, एज अ कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो ये चीज़ क्या हो गई कि बिजनेस अपना प्रॉफिट अर्न कर रहा है, कोई सिचुएशन प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब बिजनेस बड़ा हो गया है, बिजनेस डाइवर्सिफाई हो गया है, तो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू contribute to the society, maybe for the education, for the medical facilities, etc. Avoidance of government regulations. Now it is the duty of the business to avoid government regulations because it hampers the image of the business. क्या होगा अगर कोई भी गवर्नमेंट के रिस्ट्रिक्शंस हमारे ऊपर आते हैं, तो पहली चीज़ जो इतने टाइम में बिजनेस ने गुडविल क्रिएट करी थी वो गुडविल क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। और अगर गवर्नमेंट ने कोई भी रिस्ट्रिक्शंस उस बिजनेस के ऊपर लगा दिया तो क्या होगा, हम इतना फ्रीली अब बिजनेस को परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट इज अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज विद द बिजनेस। नाउ व्हाट वी हैव टू अरेंज द रिसोर्सेज, वेदर इट इज द ह्यूमन कैपिटल, whether it is land for our present situation also and for the future needs also। क्योंकि क्या होता है, जो हमारा बिजनेस है उसमें एनवायरनमेंट हमेशा चेंज होता रहता है। अब क्या होगा कि मान के चलिए हमें बिजनेस डाइवर्सिफाई करना है और हमारे पास रिसोर्सेज ही अवेलेबल नहीं है, मींस हमारे पास जो एम्प्लॉयज़ हैं वही अवेलेबल नहीं है, तो क्या होगा, हमें हमारा बिजनेस रोकना पड़ेगा या फिर जब तक रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होती है हमें क्या करना पड़ेगा, स्मॉल स्केल पे अपना बिजनेस रन करना पड़ेगा। Okay, now
converting problems into opportunities. Now if any problems is going in our surroundings, means consumer is facing any problems, if we are able to solve these problems then we can get the opportunity. क्या होगा कि अगर कोई भी सिचुएशन ऐसी आती है, मान के चलिए कोई भी प्रॉब्लम ऐसी आती है जो बाकी लोग जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे, लेकिन हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी हो, हमारे पास ऐसी कोई चीज़ हो जिससे हम वो प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर पाएँ, तो क्या होगा, जो कंज्यूमर्स की प्रॉब्लम चल रही थी वो रिजॉल्व हो जाएगी और उनका जो ट्रस्ट है हमारे ऊपर वो भी क्या होगा, वो भी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा. कंज्यूमर अवेयरनेस. नाउ it is the duty of the business to aware the consumers. That means the business should tell the rights of the consumers, business should tell the responsibility of the consumers. If business take initiatives like this, the business creates the goodwill in the market. क्या होगा, आप कंज्यूमर्स को बता रहे हैं कि आप अपने राइट्स को किस तरीके से एक्सरसाइज कर सकते हैं, क्या क्या गवर्नमेंट ने आपको फैसिलिटीज़ दे रखी है अपने राइट्स को एक्सरसाइज करने के लिए, तो वो सारी चीज़ अगर आप एज अ बिजनेसमैन किसी कंज्यूमर को बता रहे हैं तो कंज्यूमर के अंदर भी क्या होता है, एक ट्रस्ट डेवलप होता है. प्रेशर ऑफ द लेबर मूवमेंट. नाउ व्हाट हैपेंस स्टूडेंट्स, इफ वी टॉक अबाउट द एंशिएंट टाइम और द प्रीवियस सिचुएशंस, देयर इज नो यूनियन फॉर द लेबर्स. क्या होता था कि लेबर्स इंडिविजुअली काम करते थे. इफ़ बिजनेस रन हो रहा है, उसको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो लेबर वहाँ पे काम कर रहा है, नहीं तो विदाउट एनी प्रायर इंटीमेशंस लेबर को हटा दिया जाता था. लेकिन अगर प्रेजेंट सिचुएशन की बात की जाए तो अब क्या होने लगा है, लेबर यूनियंस फॉर्म होने लगी है. इफ़ द राइट्स ऑफ द लेबर्स आर एक्सप्लॉयटेड देन द यूनियन टॉक ऑन द बिहाफ ऑफ द लेबर. उनकी सिचुएशंस, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनते हैं और अल्टीमेटली कंपनीज के मैनेजमेंट तक वो प्रॉब्लम्स पहुंचाई जाती है. तो लेबर यूनियन का काम क्या हो गया कि जो भी सिचुएशन है, अगर उनकी प्रेजेंट सिचुएशन से एडवर्स जा रही हैं तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, वो जो प्रॉब्लम्स है उनको अल्टीमेटली हमें टॉप मैनेजमेंट तक पहुंचाना पड़ेगा. और ये काम किसका है, लेबर यूनियन का. होल्डिंग बिजनेस रेस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर द सोशल प्रॉब्लम्स. अब इस सिचुएशन में होगा क्या कि अगर हम इस चीज़ के लिए कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, बिजनेस में कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं किस चीज़ के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए, तो भी क्या होगा, बिजनेस की जो रेपुटेशन है, जो गुडविल है, वो मार्केट में क्या होगी, इंक्रीज होगी. नाउ देयर आर सम आर्ग्यूमेंट्स व्हिच आर इन द फेवर ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज. वी कैन से द मेरिट्स ऑफ द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. द फर्स्ट वन इज जस्टिफिकेशन फॉर एग्जिस्टेंस एंड ग्रोथ. Students, as we have already discussed about justification of existence and growth, let us understand. Business earns profit by providing goods and services to the society for satisfying their needs. Generally, it is the motive of the business to earn the profit. But we have to look the situation for the public welfare also. So, हम बिजनेस में प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, वो एक लेवल तक ठीक है, लेकिन अगर उससे किसी को एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, किसी को हार्म हो रहा है, तो वो प्रॉफिट हम शॉर्ट रन तक अर्न कर पाएंगे. लेकिन अगर बात करें लॉन्ग रन की, मींस हम अगर ज़्यादा पीरियड तक अपने बिजनेस को रन करना चाहते हैं तो हमें हमारे प्रॉफिट के साथ साथ लोगों के वेलफेयर के बारे में भी क्या करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा. Business, being a part of society, can prosper only providing continuous and fair services to them. Means हमें क्या करना है, जो भी सिचुएशन हमारे सामने है, जो भी प्रॉब्लम्स सोसाइटी फेस कर रही है, उसको भी सॉर्ट आउट करना पड़ेगा और सबको रीजनेबल गुड्स एंड सर्विसेज देनी पड़ेगी. मींस ऐसा नहीं है हमने कंज्यूमर से बहुत ज़्यादा प्राइस चार्ज कर ली, ठीक है, हमने कंज्यूमर्स को एक्सप्लॉयट करना स्टार्ट कर दिया, हमने हमारे प्रोडक्ट की डिमांड स्टार्ट हुई ज़्यादा तो हमने मोनोपोली सिचुएशन क्रिएट करना शुरू कर दिया. ऐसी सिचुएशन के साथ हम बिजनेस को ज़्यादा टाइम तक रन नहीं कर सकते. तो क्या है, हम प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, बिजनेस का मोटिव भी है प्रॉफिट अर्न करना, लेकिन उसके साथ साथ सोसाइटी को कोई भी डैमेज नहीं होना चाहिए, उनके सेंटिमेंट्स, उनके एस्पिरेशंस को हार्म नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट वन इज लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ द फर्म. अ फर्म टेक्स अ टाइम टू बिल्ड इट्स गुडविल इन द मार्केट. Now, how can a business earns a goodwill? If we are providing continuously good services to the consumers, then the reputation which is created by the businessman is ultimately known as the goodwill. तो जो गुडविल एक बार हमने क्रिएट कर ली मार्केट में, अब जो भी प्रोडक्ट हम मार्केट में लेकर आएंगे उसको हम इजीली सेल आउट कर सकते हैं. हमें कस्टमर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, कस्टमर हमारे प्रोडक्ट्स को डिमांड करना स्टार्ट करेंगे और हम उसको अल्टीमेटली सेल कर पाएंगे. तो गुडविल अगर किसी बिजनेस एंटरप्राइजेस की है तो वो अपने प्रोडक्ट को इजीली मार्केट में सेल कर सकते हैं.
Firms indulging a malpractices, that is unfair practices, may not be able to survive for long. Means if you start exploiting the customers, if you are start giving the harm to the consumers, you cannot survive in the long run. होगा क्या, कंज्यूमर्स एक बार तो आपसे प्रोडक्ट परचेज करने आएगा लेकिन दोबारा से आपसे प्रोडक्ट परचेज नहीं करेगा. क्यों? क्योंकि जो कॉस्ट उसने दी उसका फुलर सेटिस्फेक्शन उस कंज्यूमर को नहीं मिला है, या फिर अगर उसको कोई प्रॉब्लम है और आपने वो सॉर्ट आउट नहीं करी तो अल्टीमेटली क्या होगा, कंज्यूमर आपसे दोबारा से प्रोडक्ट परचेज नहीं करेगा. Avoidance of government regulations. Now, if government is restricting you for doing the business because of any malpractices, any wrongdoings, then it will give negative impact in the society. गवर्नमेंट ने आपके ऊपर कुछ चार्जेस लगाए, आपने कुछ मेल प्रैक्टिसेस की, आपने कुछ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस की और गवर्नमेंट ने एज पर दी लॉ आपको वो काम करने से रिस्ट्रिक्ट कर दिया. तो होगा क्या, जो हमारे एग्जिस्टिंग कंज्यूमर्स थे उनके सामने क्या होगी, हमारी रेपुटेशन कम हो जाएगी. और रेपुटेशन अगर कम हो गई तो अल्टीमेटली फिर कोई भी हमसे वो प्रोडक्ट परचेज नहीं करेगा. तो irresponsible behavior of the business towards the society compels the government to take actions against them. होगा क्या कि अगर कोई भी सिचुएशन आती है जिससे अल्टीमेटली कंज्यूमर को लॉस हो रहा है तो क्या होगा, गवर्नमेंट उनके लिए कुछ लॉज इंट्रोड्यूस करेंगे और उनको रेस्ट्रिक्ट करेंगे किस चीज़ के लिए, बिजनेस कैरी फॉरवर्ड करने के लिए. उनके ऊपर पेनल्टीज इम्पोज की जाएंगी. Voluntary fulfillment of social responsibility reduces the needs of new laws. Now what happens students, if we are taking part in the social responsibility, हम लोगों के वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं तो गवर्नमेंट भी हमसे क्या रहती है, लीनियंट रहती है. हमारे ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस होते हैं वो बहुत कम होते हैं, हमारे ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई जाती. क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को पता है जो हमारा अल्टीमेट मोटिव है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का, जो कंज्यूमर के वेलफेयर का हमारा मोटिव है, वो क्या होगा, वो एक ऑर्गेनाइजेशन फुलफिल कर रही है तो हमें भी क्या करना है, उसमें पार्टिसिपेशन देना चाहिए, हमें भी उस ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए. तो गवर्नमेंट मेक्स लेसर रिस्ट्रिक्शंस ऑन दीज टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, राइट. नाउ मेंटेनेंस ऑफ सोसाइटी. The arguments here is that the law cannot be passed for all possible circumstances. People who feel that they are not getting their due from the business may resort to anti-social activities not necessarily governed by the law. Now what happens students? ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि सारी सिचुएशंस के लिए लॉ बनाए जाए. अगर गवर्नमेंट कुछ लॉ बना रही है तो सारी सिचुएशन उसमें कवर हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है. तो अगर एज अ कंज्यूमर आपको लगता है कि नहीं हमारे राइट्स कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, हमें कुछ ना कुछ डैमेज हो रहा है, तो आप भी डायरेक्टली गवर्नमेंट को वो चीज़ बोल सकते हैं. गवर्नमेंट या तो आपको वो पावर देती है या फिर खुद नेसेसरी एक्शंस लेती है उस पर्टिकुलर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट. तो होगा क्या कि जो एक्सप्लॉइटेशन आपको हुआ है, द प्रॉब्लम्स विच यू आर फेसिंग इज अल्टीमेटली रिजॉल्व बाय द गवर्नमेंट. ओके. Now, availability of the resources with the business. If we talk about business, business is having various types of resources, whether in the form of human resource, whether in the form of capital. तो होगा क्या कि all the business firms can effectively use these resources to solve the social problems. What are the social problems we are facing? If business are using these resources to solve out these problems, then it will be beneficial for the consumers also, for the government also and for ultimately for the business also. क्यों? क्योंकि जो प्रॉब्लम्स एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी एक गवर्नमेंट की सॉल्व करने की, उसमें कंट्रीब्यूट कौन कर रहा है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन कंट्रीब्यूट कर रही है. तो जो प्रॉब्लम है गवर्नमेंट का मोटिव है, जैसे पॉवर्टी इरेडिकेशंस, लोगों को लिटरेट करना, वो प्रॉब्लम क्या हो रही है, हमारी सॉल्व हो रही है गवर्नमेंट के पार्टिसिपेशन के बिना. नाउ कन्वर्टिंग प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज. During the course of conducting business, firms gain expertise in converting risky situations into profitable deals. Now what happens students, as we are doing the business, we are facing different challenges in the society. हम क्या कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसी challenges हैं जो हमारे सामने आ रहे हैं. जब हम उन challenges को solve कर रहे हैं, जब उन challenges को meet out कर रहे हैं, तो क्या होगा, वो challenges को मीट आउट करते करते हमें इतना एक्सपर्टाइज हो जाएंगे हम लोग कि आगे आने वाली कोई भी सिचुएशन को इजीली डील कर सकते हैं. सो एज अ बिजनेस, इफ वी आर फेसिंग एनी टाइप ऑफ रिस्की सिचुएशंस, वी कैन इजीली मेट आउट विद आवर एक्सपीरियंस, विद आवर नॉलेज.
Hence, they are better equipped in solving the social problems. Because देखिए सिचुएशन क्या होती है, प्रॉब्लम्स कई बार ऐसी होती है जो रिपीटेडली हमारे सामने आती है, और अगर हमने वो प्रॉब्लम एक बार सॉर्ट आउट कर ली, वो प्रॉब्लम वो सिचुएशन हम एक बार मीट आउट कर चुके हैं, तो होगा क्या, अब अगर वो सेम रिपीटेड प्रॉब्लम हमारे सामने आ रही है तो हम उसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे. ओके, नाउ there are certain arguments which are against the social responsibility. We have seen the merits, the benefits of social responsibility. Now there are some arguments or some demerits of the social responsibility. First is violations of profit maximization. That means if we are taking participation in the social responsibility, we have to contribute from our profit and which ultimately gives burden to the consumers. कैसे, जो प्रोडक्ट एक बिजनेस एंटिटी सेल कर रही है उसकी प्राइस क्या होगी, अल्टीमेटली बढ़ जाएगी, क्योंकि हमें हमारे सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए तो कंट्रीब्यूशन देना ही है, और अगर देना है तो कहाँ से देना होगा, हमारे प्रॉफिट में से देना होगा, और प्रॉफिट अगर हमें अर्न करना है तो वो क्या करना पड़ेगा, अपने प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज करनी पड़ेगी, और अगर प्राइस इंक्रीज होती है तो वो अल्टीमेटली किसके ऊपर बर्डन है, एक कंज्यूमर के ऊपर उस चीज़ का बर्डन पड़ने वाला है. Burden on the consumers, as we have already talked, that if the price of the product increases, then it will ultimately give burden on the consumer. Influences social setup. That means what we are taking part as a profit motive. जो काम हम अब तक profit motive के लिए कर रहे थे, अब हमें किसके लिए करना पड़ेगा, सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू से करना पड़ेगा. Means we have to take the actions according to the society, according to the demand of the society. Then ultimately what happens? The profit of the organization is decreases. Lack of social skills. Generally, business is not equipped in solving all types of problems. अब अगर कोई भी नई चीज़ आती है हमारे सामने तो उस चीज़ को कैसे सॉल्व आउट करना है वो एक बिजनेस एंटिटी को पता नहीं होता. तो रिसोर्सेज होने के बाद भी हम सोसाइटी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाते, लेकिन अगर कर भी पाते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा कॉस्ट बियर करनी पड़ती है. Lack of public supports. Generally, people do not want that the private organization should contribute in the public welfare और social responsibility, because कोई भी सर्विसेज अगर एक प्राइवेट एंटिटी हमें देती है तो उसका अल्टीमेटली कॉस्ट क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए टाइम मैटर करता है. तो जो रिसोर्सेज वो हमें प्रोवाइड करते हैं उसके जो कॉस्ट होती है एज कंपेरेटिव टू गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कंपेरेटिवली बहुत हाई होती है. Okay, so let us understand these arguments against the social responsibility. So we can say the demerits of the social responsibility also. Violation of the profit maximization objectives. As students, we have already talked that the social welfare objectives give effect on the profit of the organization, which ultimately gives burden on the consumers. Business primarily aims at profit maximization. What is the ultimate objective of the business? Is to earn the profit. Means जो भी हम बिजनेस कर रहे हैं हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमारा बिजनेस रन होगा और हम उससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे. Fulfillment of social responsibility diverts a business from its primary objectives. Now, if we are taking the steps towards the social responsibility, we have to take the steps so that we कैन फुलफिल द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. उस सिचुएशन में होगा क्या कि हमारा जो प्रॉफिट है वहीं से हमें क्या करना पड़ेगा, सारा कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा. तो जो बिजनेस का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव था प्रॉफिट मोटिव का, वो क्या हो जाएगा, लिमिटेड हो जाएगा. परफॉर्मेंस ऑफ सोशल ऑब्लिगेशंस रिक्वायर्स ह्यूज मनी विच कैन ओनली बी मेड बाय मैक्सिमाइजिंग द प्रॉफिट. नाउ अब क्या होगा कि अगर हमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए काम करना है तो क्या करना होगा, हमें हमारे प्रॉफिट से कंट्रीब्यूशन देना होगा, और अगर प्रॉफिट से कंट्रीब्यूशन देना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना पड़ेगा. तो उसके हमारे पास दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, या तो हम हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज करें या फिर हम हमारे जो प्रोडक्ट की प्राइस है उसको भी क्या करें, इंक्रीज करें. तो अगर प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज होती है तो उसका अल्टीमेटली बर्डन किसके पास पड़ने वाला है, बर्डन उसका अल्टीमेटली कंज्यूमर को बियर करना पड़ेगा. बिकॉज जो प्रोडक्ट जिस प्राइस पे उनको अभी इनिशियली अवेलेबल है उसके लिए उनको अब ज़्यादा अमाउंट पे करना पड़ेगा. तो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी का ऑब्जेक्टिव तो फुलफिल हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ क्या हो रहा है, कंज्यूमर के ऊपर भी बर्डन पड़ता जा रहा है. ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव क्लियर टिल दिस. नाउ स्टूडेंट्स, सेकेंड पॉइंट हियर इज बर्डन ऑन द कंज्यूमर. As we have already talked that
By fulfilling the social responsibility, a business has to increase the cost of the product, which ultimately gives burden on the consumers. Now, social responsibility are very costly for the business. Means business has to set up new equipments. उन्हें नई चीज़ें सेटअप करनी पड़ेंगी, उन्हें नई रिसोर्सेस एक्वायर करनी पड़ेंगी, तो इन सब के लिए बिजनेस को एक्स्ट्रा कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी. तो अल्टीमेटली बिजनेस के पास ऑप्शन क्या है कि वो अपने प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज कर दे, क्योंकि जो प्रॉफिट मोटिव है उसको वो तो फुलफिल करना ही है. तो होगा क्या स्टूडेंट्स, इट रिक्वायर्स ह्यूज फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट लाइक बाइंग एंड मेंटेनिंग ऑफ पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट्स एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन टेक्निक्स. मींस अगर हम सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं तो क्या होगा, हमें लोगों के वेलफेयर के बारे में सोचना है. ठीक है, उसके लिए बिजनेस को नए नए इक्विपमेंट्स परचेज करने पड़ेंगे, और वो इक्विपमेंट्स के लिए कंपनी के ऊपर क्या आने वाली है, एक्स्ट्रा कॉस्ट आने वाली है. और वो जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है वो बिजनेस कहाँ से निकाल सकता है, अपने प्रॉफिट से निकालेगा. तो बिजनेस को एक सर्टेन लेवल पे अपने एग्जिस्टेंस के लिए कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो अर्न करना ही पड़ेगा. अगर मान के चलिए हमने जितनी भी गुड्स को सेल करने के बाद इनकम जनरेट की, अगर हम उसको पूरा ही सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए लगा देते हैं तो अल्टीमेटली कोई भी पर्पस नहीं रहेगा बिजनेस करने का. तो क्या मतलब है कि हमें क्या करना है, जो भी कॉस्ट हमारी लग रही है, द इक्विपमेंट्स वी आर परचेजिंग, वी हैव टू अरेंज द फंड्स फ्रॉम अवर प्रॉफिट, एंड फॉर दैट वी हैव टू गिव द बर्डन ऑन द कंज्यूमर्स. Business may shift the burden of such cost involved upon the consumers by charging higher prices. Now what happens students, the business will increase the price, increase the cost of its product, and which ultimately has to be borne by the consumers. Lack of social skills. As we have already talked that the business enterprise is not equipped in solving all the social issues, all the social problems. हो सकता है आप किसी पर्टिकुलर चीज़ में एक्सपर्टाइज हो, लेकिन सारी सिचुएशन को आप सॉल्व कर पाएंगे ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं. ओके, तो क्या होगा, पहली चीज़ तो जो कंज्यूमर है वो भी कम इंटरेस्ट शो करेगा किस चीज़ के लिए, कि आप सोशल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करो, क्योंकि ज़्यादा कॉस्ट कंज्यूमर को बियर करनी पड़ रही है. दूसरी सिचुएशन क्या है कि जो सोशल स्किल्स, जो एक्सपर्टीज चाहिए वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक बिजनेस एंटरप्राइज के पास वो सारी एक्सपर्टाइज हो, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं. So, problems faced by the business are different from those faced by the society. अब क्या होता है, हर business और society both are having their separate issues. Society wants their welfare and business wants their profit maximization. So, if we talk about these two objectives, they are very inversely proportional. That means they both are very inverse to each other. अगर प्रॉफिट मोटिव के लिए बात करते हैं तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को हैम्पर करना पड़ेगा. अगर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की जा रही है तो कहीं ना कहीं हमें हमारा प्रॉफिट मोटिव को क्या करना पड़ेगा, हैम्पर करना पड़ेगा. स्पेशल स्किल सेट्स एजेंसीज आर रिक्वायर्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द सोसाइटी. सो expertise agencies are required to solve these kinds of problems who are having the special skills in solving these problems. Business do not possess the necessary training and understanding for this. It is 100% possible students that business is not having such knowledge in solving these types of issues. अगर कोई भी सिचुएशन हमने बिजनेस के ऊपर ही डाली कि आप ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो और वो सॉल्व नहीं हो पाई, तो अल्टीमेटली क्या होगा, कंज्यूमर का जो ट्रस्ट हमने इतने टाइम में डेवलप किया है वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएगा. ओके, नाउ लैक ऑफ पब्लिक सपोर्ट. Now what happens students, people generally do not want that the private agencies are involved in solving their issues, their social problems. Why? Because it includes or it involves huge cost. क्या होता है, बड़ी बड़ी कंपनीज बहुत छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन करती हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में और उसका बहुत सारा एडवांटेज गवर्नमेंट से ले लेती हैं. अब वो जो एडवांटेज ले रही है वो आ कहाँ से रहा है, गवर्नमेंट फंड से. और गवर्नमेंट फंड्स आता कहाँ से है, हम लोगों के पास से. जो भी टैक्सेस हम गवर्नमेंट को पे करते हैं, जो भी इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट्स हम गवर्नमेंट को करते हैं, जो भी चार्जेस एक्साइज ड्यूटीज गवर्नमेंट को पे की जाती हैं, गवर्नमेंट का फंड्स वहीं से जनरेट होता है. सो व्हाट हैपेंस स्टूडेंट्स, the funds which are generated by the government is ultimately transferred to the private agencies. तो होता क्या है कि जो कंज्यूमर्स हैं वो चाहते हैं कि जो भी ऐसे सोशल इश्यूज हैं, this need to be solved by the government. Now there are various kinds of social responsibilities
let us understand. First is economic responsibility, that is what are the main purpose or main objective of doing the business. जो बिजनेस हम कर रहे हैं उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? एज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, इट इज अ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. मींस फर्स्ट बिजनेस हैज टू रन फॉर इट्स प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. देखिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में तो कंट्रीब्यूट आप तभी कर पाएंगे जब आपके पास कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने के लिए होगा, और वो आएगा कहाँ से? प्रॉफिट से. तो पहला ऑब्जेक्टिव, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या हो गया कंपनी का? कि हमें पहले प्रॉफिट अर्न करना है. वी हैव टू अर्न अ लिमिटेड और द मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट सो दैट वी कैन कंट्रीब्यूट इन द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. Second is the legal responsibility, means we have to follow the rules and regulations, the norms which has been decided by the courts, by the government. As a business enterprise, it is my duty to fulfill all the rules and regulations of the society, all the rules and regulations which has been defined for my business or by the government. Ethical responsibilities, this includes the behavior of the firm that is expected by the society but not codified in the law. For example, respecting the religious sentiments. Now, it is the duty of the business to fulfill the sentiments, the religions of the society. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सोसाइटी को हार्म करते हुए, मीन्स आप कंज्यूमर्स का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हो, जितना उनको सैलरीज पे कर रहे हो उससे ज़्यादा उनसे काम करवा रहे हो, तो उससे क्या होगा कि वो काम तो करेंगे लेकिन धीरे धीरे उनका इंटरेस्ट उसमें कम होना स्टार्ट हो जाएगा. तो कभी भी ऐसा बिजनेस एंटरप्राइज को नहीं करना चाहिए कि लोगों के हार्म करते हुए या लोगों को एक्सप्लॉइट करते हुए अपनी बिजनेस एक्टिविटीज परफॉर्म करें. नेक्स्ट इज डिस्क्रिशनरी रिस्पॉन्सिबिलिटी. डिस्क्रिशनरी मीन्स अकॉर्डिंग टू अवर विल. हम चाहे तो वो काम कर सकते हैं, नहीं तो नहीं. कोई भी कंपल्शन नहीं हमारे ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से. So what happens students, it is discretionary on the business to contribute towards the social responsibility. कैसे हो सकता है? मैंने मेरी बिजनेस से कुछ कंट्रीब्यूट कर दिया एजुकेशन की तरफ, पुअर पीपल्स की, मैंने कंट्रीब्यूट कर दिया सैनिटेशंस की तरफ, मैंने कंट्रीब्यूट कर दिया मेडिकल फैसिलिटीज़ की तरफ. तो ये ऐसी चीज़ है जो डिस्क्रिशनरी है, जो मेरे ऊपर किसी लॉ के थ्रू इम्पोज नहीं की गई है. वो चाहे तो मैं कर सकता हूँ, अगर नहीं करूँगा तो कोई भी रेस्ट्रिक्शंस मेरे ऊपर इम्पोज नहीं की जाएगी. So, this is all with the first part of this chapter. Thank you. Have a nice day. God bless you.